Okay, so can you see the screen again? The same screen? Yes, sir. Okay, okay. Yes, okay. So I was referring that. So this is a crime. I'm joining again. The crime, which is based on the process of activities, and by those activities, the people they uh, try to obtain money and are given appearance of having been legally obtained. अब होता क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में that when a black money कहते हैं जो वो पैसा जो क्राइम से या इलीगल सोर्सेस से अर्न किया जाए या कमाया जाए. Okay. Now, what are those illegal sources? There could be so many sources. Maybe white collar crime itself a source, corruption like kickbacks, bribe, embezzlement, fraud, forgery, of course, violent crime such as target killing, maybe extortion, robberies. Crime in may include the other violent activities like we have example like this organized gang के जो crimes होते हैं इंक्लूडिंग ऑल द क्राइम एक्सटॉर्शन से लेकर फिर वो जो कब्जा ग्रुप्स होते हैं फिर ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं तो ये सारे वो लोग होते हैं दे अर्न मनी फ्रॉम इलीगल सोर्सेज और थ्रू क्राइम्स एंड उस पैसे को हम कहते हैं ब्लैक मनी और डर्टी मनी. Now, as I mentioned that the problem start not when someone involved in a crimes like which I mentioned now. मसला तब नहीं होता जब कोई क्राइम करे और वो पैसा ले वो these are the different crimes. Money laundering is not directly connected with crime such as white collar crime or the bribe, embezzlement, corruption, maybe violent crimes. But in certain cases, when those criminals are organized and those organized people, individuals commit crimes as part of their life in a profession, so those people they try to launder money because they cannot only rely on the crimes and the income which is they are generating. तो उस पैसे को देख वो डंप तो कर सकते हैं प्लेस कर सकते हैं लेकिन उस पैसे को वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसको यूज नहीं कर सकते और वो इदारों से नहीं कर सकते. तो इट इज बेसिकली अ मेथड और प्रोसेस जो उनको ये एडवांटेज देता है कि वो अपने उस डर्टी मनी को वाइट कर लें या उसको वाइट करने की कोशिश करें जिससे फिर हम और आप और बाकी लोग इंक्लूडिंग दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या जो आपके पास जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं such as like we have institutions like we have anti-drug narcotics force, we have NAB, we have like FIA, we have State Bank. Okay. जिनका काम होता है FBI to check out your assets, declaration of assets, and of course the taxes जो आप पर due होती हैं. Okay. But these people who involved in the money laundering, they always violate someone or the other aspect. Either they are not ready to pay their taxes, so उनको कहते हैं tax evasion, और जो वो पैसा कमाते हैं उसको उनको वाइट करना होता है through a complicated transition. Okay. So let me just read another definition. So money laundering क्या हुआ? It is a process by which the proceeds of crime. Money laundering is a process by which the proceeds कहते हैं जो जो क्राइम के अर्निंग होती है जो क्राइम के जो
जो वर्थ होती है, जो पैसे होते हैं, या जो मनी या जो वैल्यू होती है क्राइम की, इट मे बी इन कैश फॉर्म, इट मे बी इन सम अदर मॉनेटरी फॉर्म. So money laundering is a process by which the proceeds of crime and the true ownership of those proceeds are concealed or made opaque so that the proceeds appear to come from a legal source. मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक वो प्रोसेस है जिससे जो क्राइम के प्रोसीड्स होते हैं, जो क्राइम का पैसा होता है, उसको या उसकी ओनरशिप को, दैट हु इज गोइंग टू ओन दोस प्रोसीड्स, उसको कंसील किया जाता है, छुपाया जाता है, और उसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है इस तरीके से कि वो बाद में एक लेजिटिमाइट लीगल सोर्स या इनकम नजर आए. So generally, money laundering is a process again by which one conceal the existence. Money laundering is a process जिससे कोई भी अपनी जो कंसील करता है किसको, एग्जिस्टेंस को, वजूद को, of illegal source or illegal application of income to make it appear legal. In other words, it is the process used by criminals through which they make dirty money appear to be clean, or profits of criminal activities are made appear to be legal. Again, ये वो एक प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, जिससे जो एग्जिस्टेंस होती है ब्लैक मनी की, जो अर्न किया जाता है थ्रू इलीगल सोर्स, उसको वाइट किया जाता है या वाइट करने की कोशिश की जाती है, ताकि क्राइम्स की जो इनकम है या जो प्रॉफिट है, समझे ना, क्राइम्स, सम क्राइम्स result in a profit, so it result in a money, like robbery, like dacoity, like white collar crimes such as corruption and all the crimes. कुछ crimes का जो एंड रिजल्ट होता है वो मनी डायरेक्ट नहीं होता बल्कि प्रॉफिट होता है, such as casino, brothel, gambling, काटा, या ड्रग ट्रैफिकिंग, certain some time of like corporate crimes are there. तो ये वो क्राइम्स हैं जिनका प्रॉफिट मिलता है उनको. ओके. अब प्रॉफिट हो क्राइम का या फिर क्राइम का डायरेक्ट क्राइम का पैसा हो, दोनों सूरतों में हम उसको क्या कहते हैं, ब्लैक मनी, डर्टी मनी. So that dirty money cannot be used or invested or declared by those criminals because that makes that put them on suspect list. इससे वो उस लिस्ट में आ जाएंगे, उनको नाम, जिससे they can be identified, detected, apprehended easily. But you know that most of the money launderers, they avoid apprehension, they avoid detection, and they are not going to be easily prosecuted or convicted. Just because this is one of the very typical sophisticated crimes of modern times. इतना मुश्किल क्राइम है कि आसानी से वो लोग पकड़े जाते भी नहीं है, और अगर पकड़े भी जाएं, अगर नेब या कोई इदारा उनको पकड़ भी ले, तो बड़ा मुश्किल होता है उनसे उनको प्रोसिक्यूट करना, या उनको फिर प्रूव करना कि दे हैव अर्न, बिकॉज दे हैव द स्किल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके बिना पे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं उस सोर्स को, उस सोर्स ऑफ मनी को, कि वो समझ नजर नहीं आती कि इट इज एक्चुअली ब्लैक मनी और इट इज वाइट मनी. मतलब वही बात, अगर मैंने क्राइम कर रहा हूँ और मेरे पास डर्टी ब्लैक मनी है, तो अगर मेरे पास घर में होगा या मैंने अपने अकाउंट में रखा होगा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, और मैं कल परसों कभी ना कभी पकड़ा जाऊंगा. लेकिन क्योंकि अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, प्रोसेस में आ रहा हूँ, तो फिर मैं इतना सोफिस्टिकेटेडली इसको मैं डील करूंगा कि मुझ पर किसी को शक भी हो जाए और मैं अगर प्रोसिक्यूट भी हो जाऊं, तो फिर मैं
गिल्टी प्रूव नहीं हो पाऊंगा, बिकॉज वो वही मेरा पैसा अगर मेरे ड्राइवर के या किसी जाने वाले के नाम पे होगा, वहां से कहीं गया होगा, फिर इन्वेस्टमेंट हुई होगी, ओके, तो फिर डायरेक्टली मुझे कोई नहीं कह सकता कि वो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो मैंने की है, ओके। देयरफॉर this is like a money laundering is a type of process that eventually make things confused, very complicated as far as the ownership of money is concerned. Okay. Now, the definition of Swiss bank. Money laundering is a process whereby origin of funds generated by illegal means is concealed, such as drug trafficking, gun smuggling, corruption. Same definition, but a different line. एक वो प्रोसेस है जिसमें जो ओरिजिन होता है फंड्स का, ठीक है ना, अगर आप एक लीगल सोर्स से पैसे को अर्न करें और क्राइम से आपने अर्न नहीं किया हुआ, तो आप बड़े आसानी से उस लीगल पैसे को डिक्लेयर कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लीगल सोर्स को फोर्स जो सोर्स होती है हमारी उसको डिक्लेयर नहीं करते, बिकॉज वो टैक्स देने से घबराते हैं या अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे जो पैसा होगा वो ब्लैक तो नहीं होगा, लेकिन वो टैक्स नहीं देना उसको ब्लैक बना सकता है बेसिकली, तो ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन बाय एज लार्ज अगर हम बात करें, तो ज्यादातर जो मनी लॉन्डर्स होते हैं दे अर्न मनी थ्रू करप्शन, थ्रू स्मगलिंग, थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग, थ्रू गन ट्रैफिकिंग, थ्रू अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। तो फिर उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि दे कैन नॉट डिक्लेयर द एसेट्स और द मनी। Okay, once they declare, they will be on suspect list. They can be monitored. They can be detected. Therefore, they try to make process complicated, और फिर आखिर में आके वो फिर अपने एसेट को डिक्लेयर कर लेते हैं, जिससे नजर ये आ जाता है कि शायद वाकई वो पैसे वाइट थे। अब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर एक बंदा है जो डिफरेंट क्राइम से पैसे को अर्न कर रहा है, तो वो उसको डंप करके कुछ नहीं कर सकता। नेचुरली ही वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, ही वांट टू डिक्लेयर इट, ही वांट टू यूज इट। तो लोग तो क्या करते हैं वो लोग, दे ट्राई टू लॉन्डर द मनी आउटसाइड द कंट्री। अब देखें भले कहीं भी बाहर भेजें, कुछ भी करें, बाहर इंडस्ट्री लगा दें, फैक्ट्रीज लगा दें, मल्टीनेशनल कंपनीज खरीद लें, बड़े कोई अपनी रियल एस्टेट का बिजनेस करें बाहर, लेकिन एक ना एक दिन उनको पैसे को वापस लेके आना भी होता है। तो आप देखें कितने हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं और बाकी लोग हैं जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगते हैं, प्रूव भी होते हैं किन पर। तो ये होता है कि उनके उनके पैसे बाहर से यहाँ पे आ रहे होते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि दे ट्राई टू गिव अस अ मनी ट्रेल थ्रू द मीडिया टॉक्स, लेकिन वी आर नॉट द एक्सपर्ट जो उनसे मनी ट्रेल लें। लेकिन जब कोई इदारे उनसे मनी ट्रेल लेते हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, फलां ने गिफ्ट दिया था, फलां से आया था। बिकॉज वंस यू हैव अ लीगल सोर्सेज, वंस यू हैव अ लीगल बिजनेस, यू मस्ट हैव अ मनी ट्रेल, ओके। मनी ट्रेल क्या होती है? दैट द सिस्टमेटिक डिक्लेरेशन और ब्लैक एंड व्हाइट में पैसे को कमाने का एक डिक्लेरेशन, कि आपने जो आप एसेट आपने जो आपके पास एसेट्स हैं वो आपने किन किन सोर्सेज से लिए। सैलरी स्लिप कैन बी मनी ट्रेल, इन्वेस्टमेंट somewhere with a profit, receipts can be money trail, the transaction of in your account by from someone may be money trail, your inherited money, a property that you inherit from your parents, grandparents, may be a money trail, okay। तो दे उनके पास मनी ट्रेल नहीं होती। what they try to do, that they always try to launder money most of the time across their borders, like कुछ ऐसे मालिक हैं जिनको हम कहते हैं कि वो सेफ हेवन्स हैं टैक्सेस की हॉल से, वहां पर टैक्सेस नहीं होती जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आप लेके आते हैं। उन माल में आप देखें यूके, स्विट्जरलैंड, दुबई, यूएई, ओके, ये ऐसे मालिक हैं जहाँ पे
nobody will ask you कि आपने जो पैसा लेके आए हैं अपने मुल्क से वो अपने किस सोर्स से लेके आए, दे जस्ट वेलकम यू। और फिर जो पैसे आप वहां रह के कमाएंगे थ्रू अ इंडस्ट्री, थ्रू अ कंपनी, उस पर टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो पैसा आप अपने मुल्क से लेके आ जाएंगे, भले यहाँ पे आपके पास अपना घर भी नहीं हो, गाड़ी भी नहीं हो, और यहाँ पे आप करोड़ों रुपए वहां पे लेकर कोई बड़ा बिजनेस लॉन्च करें, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपने पैसा कहाँ से लिया। यहाँ के लोग आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ के इदारे आपसे पूछेंगे। तो therefore what they try to do, they try to transfer the money and they try to invest the money over there, and later when they get back money from those sources, they always try to give lame explanation, like they inherit the money, they have been gifted the money, or they invested money about years back। जैसे स्टील बैंक में बड़ी बात हो रही थी, स्टील बैंक के बारे में कहा गया था वो 20 25 30 साल पुरानी लगी हुई थी, उसके उस वक्त जो वर्थ थी वो कम थी, और आज उसकी वर्थ है वो ज्यादा है। therefore this may be like an explanation। okay, so this is like a basic concept। just let me move further। now the word laundry, if you go to the word meaning of money laundering, the word meaning of laundry is literally meaning cleaning, धुलाई करना, धोना। हम अपने लॉन्ड्री में अपना अपने कपड़े देते हैं, to so that the clothes may be clean through process of cleaning। Okay, it's known as a laundry। Okay, so the process of cleaning, so metaphorically money laundering refers to cleaning of the money। So by its very basic meaning, the term money laundering means the money laundering, it means the process of making money clean, or process of making dirty money is a clean। Okay. So what basic point that we have achieved now? Now the like aim, generally there's always one or the other goal of money laundering. It's not a crime that it's not a normal crime. It's not a common crime. As I said, it's a very sophisticated crime. So money laundering is performed systematically, making it difficult to identify exactly how much money is involved, what methods are employed, and what magnitude the problem is there. Okay. Like to reflect the fact that the case is often introduced to economy by commercial concern, which may knowingly or not knowingly be part of laundering scheme. And it is these which ultimately prove the interface between the criminal and clearly explain the money launderers use transfers. Okay. Now just try to focus on the line. Now, money laundering is a crime which is basically based on a process of activities which are so sophisticated, so complicated, and confusing। When I use the term sophisticated, तो इसका मतलब क्या हुआ? Something which is quite systematic, which is very skillful, methodological, which is not quite common. So it is a sophisticated process, making it difficult to identify exactly how much money is involved. Because about the nature of the crime or the process, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्राइम में कितना पैसा इन्वॉल्व है। आप सपोज करें मैं किसी भी सोर्स से कुछ लाख रुपए, 10 15 लाख रुपए कहीं बाहर भेज रहा हूँ, मे बी थ्रू दी लाइक हाई प्रोफाइल केस लाइक मॉडल अयान अली, मे बी थ्रू अ हवाला हुंडी,
that is smoke. Sir, जी please. maybe through sir digital currency, lithium, Bitcoin, through this बिटकॉइन, too. जी बिटकॉइन आजकल उसका बड़ा नाम है, उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो जब मेथड की हम बात करेंगे तो फिर उसमें बिटकॉइन और जो डिजिटल करेंसी है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो कि आजकल के दौर के हिसाब से डिजिटल करेंसी इज आल्सो वन वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इजी मेथड। लेकिन यहाँ पर हम Yes बात sir. करें कि वो उनका एम क्या होता है, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अब वो पैसा किसी कोई बंदा लेके जा रहा है, अब वहां पे किसी को नहीं पता होगा कि वो पैसा किसका है, कितना है, कितनी बार जा रहा है और किस क्यों क्यों जा रहा है। तो फिर क्या होगा कि वो मेरा पैसा एक बंदा भी लेके जाएगा, फिर परसों दूसरा बंदा भी लेके जाएगा, परसों तीसरा बंदा भी लेके जाएगा, और बाकी सोर्स से भी मैं अपने पैसे को भेज रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे वो पूरे का पूरा पैसा मेरे नाम पे, मेरी इन्वेस्टमेंट में, या मुझे मेरा बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे एयरलाइन केस में क्या हुआ था, शी हैड पेड अबाउट 30 प्लस विजिट्स ऑफ दुबई इन अबाउट short span of time, like 2 to 3 months, and every time she confessed that she transferred the amount, similar amount of money. Okay, अब तो फिर क्या हो गया, अब सो ये हो गया कि एंड ऑफ द डे वो एक ही बंदे के, या वो कुछ लोग मनी लॉन्डर्स के वो पैसों को किस तरीके से ट्रांसफर किया गया था वहां पे। तो अब कोई भी अथॉरिटी, भले आपकी एयरपोर्ट पे हो, कोई स्टेट बैंक हो, उसको नहीं पता होगा कि ये कैश, काइन, डिजिटल करेंसी, हवाला हुंडी से पैसे जो बाहर जा रहे हैं, जो कम अमाउंट में भी जा रहे हैं, ये एक ही बंदे के हैं जो बार बार जा रहे हैं या किसी के जा रहे हैं। और एंड ऑफ डे वो पूरे के पैसे कहाँ क्या हो जाएंगे, लॉन्डर भी होते हैं, मतलब अपने एक फेज से गुजर जाएंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज। तो पहले प्रोसेस में क्या होगा, उसके कुछ बहुत बड़े अहम करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर मैं अभी आऊंगा। एक प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन। तो इन तीनों तीनों स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इट्स अ प्रोसेस बेसिकली। अगर सिर्फ प्लेसमेंट हो रही है तो इट्स नॉट अ मनी लॉन्ड्रिंग। ओनली लेयरिंग इज देयर, इट मे नॉट बी मनी लॉन्ड्रिंग। और आखिर आखिर में इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, जो होगी तो फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो जब ये बार बार डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज, तो उसका मतलब ये होगा उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद हम कहते हैं कि वो फंड्स अभी लॉन्डर हो गए। ओके, ऑलराइट। सर हुंडी कैसे यूज होता है सर? क्या सर हवाला हुंडी कैसे यूज होता है? जी, ये मेथड्स पे इसमें आऊंगा। जो डिजिटल करेंसी हो गए, मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गए, या जो बाकी जो बैंकिंग के मेथड्स हो गए, तब वी विल हैव अ लेक्चर ऑन मेथड ऑफ टेक्निक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि थ्योरी थ्योरी क्या है इसकी, व्हाट आर द बेसिक इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इनको सिर्फ हम ओके सर। later we discuss those types and techniques of money laundering. ओके सर। Now, do you know some facts and figures? Money laundering, money launderers, like they are big time criminals who operate through international networks without disclosing their identity. आपने already you must have idea of transnational crimes. Organized crime को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने पढ़ा समझा भी है कि वो किसी लेवल पर भी हो सकते हैं। मे बी एट द लेवल ऑफ इन कम्युनिटी, सोसाइटी, नेबरहुड, मे बी वायलेंट, मे बी नॉन वायलेंट। लेकिन ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जब हमने डिस्कस किया था तो उसका कंसेप्ट क्या था कि दोज ऑर्गेनाइज क्राइम जिनका जो स्कोप है दैट इज क्रॉस बॉर्डर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। तो उसके बिना पे वो क्राइम ज्यादा ऑर्गेनाइज भी होते हैं, ज्यादा नॉन वायलेंट भी होते हैं, और प्रॉफिट का मार्जिन भी ज्यादा होता है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी होते हैं। तो money launderers are like a big time criminals, a very skillful criminal
who operate through international networks। मतलब इनके जो ऑपरेशन होते हैं वो ज्यादातर लोकल नहीं होते, हालांकि लोकली भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर काफी स्कीम्स हैं, जैसे आपको रियल एस्टेट स्कीम मिल जाएंगी, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े आपके यहाँ पे कंपनीज हैं, नाम की शेल कंपनीज हैं, या ऑफशोर कंपनीज आप देख लें तो पेपर के हद तक है। उनकी कोई वर्किंग नहीं है सच, उनकी कोई अपनी अ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है अपना, दे आर ओनली इन पेपर्स, ठीक है। तो उन कंपनीज के नाम पे पैसा जमा होता है, उन कंपनीज के नाम पे वो पैसा डिक्लेयर होता है, उन कंपनी के नाम पर ये परसेप्शन हो बनता है कि वो पैसा अर्न किया गया है, हालांकि वो कंपनी सिर्फ सर नाम की होती है, जब तक हद तक ही होती है, ठीक है। देयरफॉर लेकिन ज्यादातर हम जो मनी लॉन्ड्रिंग हम देखते हैं वो देखते हैं इंटरनेशनल, उसका जो मैकेनिज्म देखते हैं कि पैसा यहाँ से मुख्तलिफ मेथड से ट्रांसफर हो जाता है बाहर के मालिक में, और वहां पे वो जाके वो पैसा फिर एक प्रोसेस के बाद वापस आके यूज होता है और मार्केट में आता है, या सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है, या उस बैंक अकाउंट में आता है। तो फिर वो पैसा क्या नजर आता है? इट अपीयर टू बी वाइट, क्लीन, टेकन फ्रॉम अ बिजनेस लीगल सोर्स, विद अ लीगल प्रॉफिट। हालांकि उसका ओरिजिन भी ब्लैक होता है, डर्टी, उसका प्रोसेस मे बी सीम्स टू बी वाइट, but it is with the intent, with the intention of crime, so therefore it become crime, okay। so उसका सोर्स भी ब्लैक होता है, उसका प्रोसेस भी ब्लैक होता है, और फिर उसका जो प्रॉफिट होता है वो नजर ब्लैक वाइट आए, लेकिन एक्चुअली वो फिर ब्लैक मनी ही कहलाया जाता है, ठीक है। जैसे होगा कि एक बंदा जब तक अ, लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि वो अर्न कर रहा है थ्रू लीगल बिजनेस, तो वो पैसा क्या होगा? प्रॉफिट, लीगल होगा, इट इज अ लीगल इनकम, वाइट मनी। लेकिन जब मनी ट्रेल नहीं दे पाए, जब 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 एसेट को की सोर्स ऑफ ओरिजिन को नहीं बता पाए, तो फिर वही प्रॉफिट क्या बन जाता है? वो प्रॉफिट इलीगल। आप सपोज करें मेरी आप किसी की एक फ्लैट या अपार्टमेंट है लंदन में या कहीं पर, अब मैं यही बता रहा हूँ सबको सालों साल कि ये मैंने किस तरीके से कमाई, मतलब सिर्फ एक परसेप्शन मैंने बना दिया है कि मेरे पास कोई बड़ी ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की कोई वेल्थ थी, जिसको मैंने बेचा, फला जगह थी, उसको मैंने 20 साल पहले मुझे इतना प्रॉफिट मिला, मैंने वहां उस टाइम पे प्लॉट ले लिया था, उसकी वर्थ कम थी, आज क्योंकि टाइम गुजर चुका है, आज उसकी मार्केट वर्थ इतनी है, लेकिन उस टाइम पर इतनी थी, तो मैंने ये लोन लिया था और मैंने ये बना लिया था, तो आज ये मेरे पास ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है वहां। तो दैट, व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू मेक थिंग्स कंफ्यूज नाउ। अब अगर वाकई कोई इन्वेस्टिगेशन होगी या कोई फोरम होगा, तो फिर आई मे बी टेकन ए सस्पेक्ट, तो दे विल आस्क यू मनी ट्रेल, यस, अगर आपने वाकई इस तरीके से पैसे कमाए, तो वेयर इज रिसीट्स, वेयर इज दिस डिक्लेरेशन ऑफ दैट sale and purchase, where is sale deed, where the purchase contract, where's that uh, declaration, where's that affidavit, and what's the transaction, okay, we call it like bank statement। तो अगर वाकई वो मैंने किया होगा, नेचुरली आई विल हैव ऑल द मनी ट्रेल, जब डिक्लेयर करूंगा तो इट विल बिकम वाइट, इट्स नॉट मनी लॉन्ड्रिंग देन। पर क्योंकि मेरे पास वो ब्लैक मनी होगा जो मैंने क्राइम से लिया होगा, so I failed to declare the money trail or the receipts or the declaration। रिजल्ट क्या होगा? I will be considered as a money launderer, बिकॉज नेचुरली फिर मुझसे ये नहीं पूछेगा आपने कौन से कैपिटल, पूछेगा आपने क्राइम ही किए होंगे। आप सुना होगा आपने, बिहाइंड एवरी बिग वेल्थ देयर इज अ क्राइम। इसका कंसेप्ट ये नहीं है कि हर बड़ी पैसों की जायदाद के पीछे क्राइम होता है, इसका मतलब है कि अगर उन पैसों की आपके पास सबूत नहीं है कमाने के, मनी ट्रेल नहीं है, तो फिर उसका मतलब होगा कि आपने क्राइम ही किए होंगे। ये नहीं हो सकता कि किसी किसी किसी
कि कोई कोई खजाना आपको मिल गया हो, या कोई जमीन से खजाना निकला हो, या कोई आपकी लॉटरी लॉटरी की मनी ट्रेल होती है फिर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यू इफ यू फेल टू गिव मनी ट्रेल और the assets like from where you earn the money, it mean आपने नेचुरली क्राइम किया होगा, it is result of a crime. Okay. So that is the basic concept of money